Good morning students. Welcome to our English class. Our today's topic is chapter number 2, that is the Huntsman and the Cave of Animals, a Native American folktale. It is a traditional story. किसकी स्टोरी है? Huntsman and the Cave of Animals की, and it is generally belongs to the Native American. Native American means those people that belongs to that origin from the American. And folktale. Folk means this such a story that which is not written in the book. It is a mouth to mouth transfer story. Means जो हम माउथ टू माउथ हमारी ग्रैंड मदर हमें स्टोरी सुनाती है, वैसे उसका मीनिंग है फॉक. ओके, दैट मीन्स स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ ट्रेडिशनल स्टोरी अबाउट द Cherokee. Cherokee are the peoples who's originated from the American. Okay students? स्टूडेंट्स बेसिकली अमेरिका अभी जो आप डेवलप देख रहे हो पहले वैसा नहीं था. द पीपल्स हु आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमेरिका वेर रेड इंडियंस एंड द यंकी. टू ट्राइब्स वेर देयर, रेड इंडियंस एंड यंकी. सो दिस स्टोरी इज फॉर्म्ड ऑन द रेड इंडियंस. ओके, इन दिस स्टोरी वी विल लर्न हाउ द हंटिंग बिगिंस. स्टूडेंट्स पहले के जमाने में प्रिमिटिव मैन, उनको कुछ नहीं था, काम कैसे करे, क्या खाए, क्या पहने, हमारी हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री आपने देखी है. ओके, तो बेसिकली हंटिंग वाज द बेसिक, हंटिंग वाज ओनली द वे टू सर्वाइव. सो इन दिस स्टोरी वी विल लर्न हाउ द हंटिंग is come to known by the primitive man to survive in this world. Okay students, so before going to start our chapter, we will learn the new words. Okay, so let's start. Students, these are the word meanings of this chapter. These are words which are tough to understand. Okay, so let's go through it. First is Cherokee. Cherokee, a tribe of Native American people. A tribe means जनजाति जो पहले के ज़माने में अमेरिका में रहती थी, बिफोर अमेरिका. ओके, जब अमेरिका में बेसिक पीपल रहते थे वो कौन थे? रेड इंडियंस. नेटिव मीन्स originated. Second is legends. Legends means old stories about famous people and events in the past. Old stories से किसके? About the famous people and उन्होंने क्या past में ऐसा अच्छा काम किया है जिससे हम उन्हें आज भी याद करते हैं. ओके. Third is boulders. A large rock, बहुत बड़ा पत्थर. Next word is carcass. Carcass, the dead body of an animal. Carcass means dead body of an animal. Next word is thundering. Thundering. Thundering means making a loud and deep noise. बहुत जोर की आवाज. Okay. Next word is pinned. Pinned, held firmly in a particular position so that one was unable to move. Pinned means एक ही जगह पे एकदम firmly किसी भी position में stop हो जाना, ताकि इतना firmly stop होना ताकि कोई आपको वहाँ से हिला ही ना सके. जैसे कि हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, उसमें मेन कोई की चैट या तो फिर मैसेज हम पिन कर देते तो ऊपर ही वो ब्लिंक होता है, आप उसको वहाँ से रिमूव नहीं कर सकते उस पोजीशन से. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज टेम्पल्ड. टेम्पल्ड मीन्स स्टेप्ड ओवर हैवीली बाय समथिंग और समवन, किसी के ऊपर से जोर से चले जाने का.
stepped over. Okay, jump way में. Next word is trail. Trail means a path, means रास्ता. Next word is anticipating. Anticipating means expecting. Means expecting. Another word is tomahawks. Tomahawks, single-handed axes. Here you can see the image of tomahawk is given to you. Okay. Next word is endure. Endure means survive. Endure means survive. Okay. Next word is sustain. Sustain means to cause or allow something to continue for a period of time. Sustain means क्या? Allow करना, किसी कोई चीज़ है उसको allow करना कि वो same period थोड़े time के लिए वो continuation में जाए. Okay, next word is conserve. Conserve means to preserve, store करना. Okay students, these were the difficult words in this chapter. So let's continue the further. Now let's begin the story The Huntsman and the Cave of Animals, a Native American folktale. Okay, ये story Huntsman and Animals की है. This huntsman is a people which belong to the America. Okay, चलो let's start. Here, moving on, in the Cherokee, the Native American tradition, there are legends told of a great huntsman. चेरोकी एक ट्राइब है, एक शेड्यूल कास्ट ट्राइब है, ओके, जो अमेरिका में बिलोंग्स करती थी अमेरिका से, जो कि थे रेड इंडियंस. उसमें देयर वर लेजेंड्स थे वहाँ पे दैट टोल्ड्स अ ग्रेट स्टोरी ऑफ अ हंट्समैन. हंट्समैन कौन था? ही वॉज द फर्स्ट हंट्समैन हु टॉट ऑल अदर. Okay, the story about the huntsman, how the hunting process started and who was the first to hunt the animal. Okay, so he was the first to hunt the animal. He never once missed finding food for his people. Students, basically in ancient times the only food they were to eat was the animal. Okay, so he was the one who never missed finding food for his people and so they never went hungry. हमेशा वो अपने फैमिली के लिए फूड ढूंढ के ही लाते थे, सो कभी वो हंग्री, वो भूखे नहीं रहे. द होल वर्ल्ड वॉज हिज हंटिंग ग्राउंड. पूरी दुनिया को पता था कि वो कितना अमेजिंग हंटिंग करता था. एंड दिस इज हिज स्टोरी. जो आज स्टूडेंट हम स्टोरी पढ़ेंगे वो किसकी स्टोरी है? वो इस हंट्समैन की स्टोरी है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इन एशियन टाइम्स देयर वाज ओनली वन चेरोकी विलेज. कैसा विलेज? चेरोकी का, सिर्फ चेरोकी पीपल का सिर्फ एक ही विलेज था. एट द टॉप ऑफ सेक्रेड माउंटेन वॉज अ केव blocked by a boulder. ये जो आप देख रहे हो इमेज में, he was a Red Indian. Okay, he belongs to the Cherokee village and at that time there was only one Cherokee village and this Cherokee village was situated. कहाँ पे उसकी लोकेशन कहाँ था ये Cherokee village? तो at the top of a sacred mountain was the cave blocked by the boulder. Sacred mountain पे एक cave means गुफा. Okay, you can see here image at the back one cave is given which is blocked by a boulder. And meanings we have studied. What is the meaning of boulder? Boulder means a large rock, पत्थर बड़ा सा, उससे वो cave ब्लॉक की गई थी. Okay, inside the cave, अभी केव ब्लॉक की थी मीन्स उसके अंदर कोई होगा. सो इनसाइड द केव वन कुड हियर
every type of growl, grunt and bark. केव के अंदर से कैसी कैसी आवाज, ग्रोलिंग की, ग्रंट, बार्क, हर चीज की जो एनिमल साउंड प्रोड्यूस करते हैं वैसी वो आवाजें अंदर से आ रही थी. ओके. Now here the image is given to you. You can see here these people, these way in that era these people dress up like this way, and at the back you can see there is a cave which is blocked by the boulder. Okay. In ancient times there was only one Cherokee village we have studied. Okay. Now every day the huntsman would hike to the mountain cave and pull the boulder aside to release a lone creature from the den. Den means this cave. Okay. क्या करते थे ये हंट्समैन, डेली ऊपर माउंटेन पे चढ़ के जाएंगे एंड एट द केव ही पुल द बोल्डर असाइड, इतना ही मूव करेंगे ताकि उसमें से वो एक अलोन क्रिएचर मीन्स कोई भी एक एनिमल को बाहर निकाल पाए. एंड ही वुड देन शट द केव एंड प्राउडली कैरी होम द carcass ऑफ ऑन हिज शोल्डर. ओके. व्हाट हैपेंड देन, एक एनिमल को उन्होंने बाहर निकाला एंड देन शट दी केव, क्लोज कर दिया, फिर से वो ब्लॉक कर दिया केव को ताकि कोई दूसरा एनिमल बाहर ना आ पाए. एंड हियर कैकस मीन्स द डेड बॉडी ऑफ द एनिमल, जो वो एनिमल वो बाहर निकालते हैं उसको मार के अच्छे से शोल्डर्स पे रख के उसकी डेड बॉडी को घर पे लेके जाते थे. वाई? टू ईट, टू हैव अ फूड. ओके स्टूडेंट्स. Now moving further. Now one day what happened? One day the hunter's two sons named Thunder Boys followed him and found the cave. What happened one day? ये हंटर मैन थे, उसके दो सन थे. ओके. They both followed him. They named Thunder Boys. उनका क्या नेम था? Thunder Boys. And they both followed his father and found the cave from which his father used to bring the food. Okay. Now they went back another day. एक दिन अपने पापा को फॉलो किया और केव ढूंढ ली कि ये केव है. On the next day they both went there and pushed open the boulder at the mouth of the cave. दूसरे दिन वो दोनों बॉयज फिर से वहाँ पे गए एंड व्हाट दे डिड देयर, दे ओपन द बोल्डर. वो जो केव के सामने बोल्डर रखे थे, बिग रॉक्स, उसको उन दोनों ने हटा दिया. ही पुश्ड एंड ओपन द माउथ ऑफ द केव. ओके. टू देयर सरप्राइज इट टम्बल्ड अवे. व्हाट हैपेंड? इट टम्बल्ड अवे. टू देयर सरप्राइज, एकदम शॉक हो गए. एनिमल्स ऑफ ऑल टाइप्स कैम थंडरिंग आउट. थंडरिंग मीन्स अगर आप कहीं फंस गए हो और आपको वहाँ से बाहर निकाला जाए तो हाउ यू विल फील. ओके. आप ऐसा करोगे कि मैं पहले जाऊँ. लाइकवाइज सिमिलर थिंग हैपन टू दी एनिमल्स ऑल्सो. जैसे ही वो केव का माउथ ओपन हुआ, सारे एनिमल्स डिफरेंट वॉइस करके भागते भागते वहाँ केव से बाहर आने लगे. द ब्रदर्स स्ट्रगल टू क्लोज द माउथ ऑफ द केव as paws, hooves and feet of all shapes and size pounded the earth. What happened? जैसे ही वो एनिमल्स बाहर आने लगे, वो दोनों ब्रदर्स ने बहुत ट्राई की कि वो फिर से उसको क्लोज करे केव को, बट नथिंग हैपन हियर. वन मोमेंट दे वर पिन्ड टू द ग्राउंड. क्या हुआ? एक मोमेंट पे वो फर्मली एक पोजीशन पे नीचे ग्राउंड पे लंबे एकदम स्ट्रेट सो गए ताकि कोई एनिमल्स उन्हें ना देख पाए. एज दे फेल्ट देयर बॉडीज ट्रम्पल्ड बाय द एनिमल्स रशिंग आउट. व्हाट हैपेंड?
ताकि कोई एनिमल्स उन्हें ना खाए और एनिमल्स उसकी बॉडी को डेड बॉडी समझ के वहाँ से पास आउट हो जाए. नाउ ऑल द एनिमल्स एस्केप्ड इनटू द वुड्स टिल द केव वाज वेकेंट. जब तक पूरी केव खाली नहीं हो गई होती तब तक वो सारे एनिमल्स वहाँ पूरी केव खाली करके जितने भी एनिमल्स थे वो सारे भाग के आ गए और चले गए कहाँ? वुड्स यानी कि जंगल में चले गए. ओके. See students, here you can see these two boys lied on the ground and pinned to the body was, they were pinned, they firmly in a particular position they, so that the animal smelled the dead bodies there, so they won't eat them. Okay, and the animal will pass out. Next, after a while they heard a moment. After the cave was empty, the all animals ran away. After that, these both boys heard a voice. It was their father and the keeper of the animal. Means उन्हीं के father ने animals को वहाँ पे रखा था. Who had heard the sound of thunder and run along the trail to the mouth of the cave. What happened? जब इन्होंने केव खोली जो थंडरिंग साउंड सुनाई दी एनिमल्स की एक साथ, ठीक है, वो वॉइस सुन के उसके फादर ऑन दी वे, वहाँ से जहाँ पे वो थे वहाँ से ऑन दी वे केव तक दौड़ते दौड़ते आए. ही वॉज ब्रीथिंग हैवीली. दौड़ते दौड़ते कोई भी वहाँ पे इतनी ऊंचाई तक जाए तो इट्स नेचुरल ब्रीथिंग आपकी हैवी हो जाएगी. ओके. आफ्टर हैविंग रनिंग ऑल द वे अब दौड़ के वो ऊपर तक पहुंचे तो उनकी श्वास चढ़ गई. ओके. देन द बॉयज हंग देयर हेड्स इन शेम एंड स्टूड नेक्स्ट टू द एम्प्टी केव एंटिसिपेटिंग देयर फादर्स रैग. नाउ व्हाट हैपेंड? अभी फादर तो ये देख के बहुत ही गुस्सा हो गए कि सारे एनिमल्स भाग गए. नाउ व्हाट हैपेंड? सो दिस बॉयज़ को भी डर था कि अभी फादर हमें डांटेंगे. ओके. और एक भी एनिमल्स को वो वहाँ पे नहीं कैप्चर कर पाए. सारे एनिमल्स भाग गए. अभी पापा का गुस्सा किसको हैंडल करना पड़े? इन दोनों बॉयज़ को ही. ओके स्टूडेंट्स, द हंट्समैन सेड नथिंग. उनके फादर कौन थे? हंट्समैन ही थे. उन्होंने पहले तो उन्होंने कुछ नहीं बोला. बट व्हेन ही स्पोक, जब उन्होंने बोला तो क्या बोला? लेट्स सी. द हंट्समैन सेड नथिंग एट द फर्स्ट उन्होंने तो बस देखा ये सब और एकदम शॉक हो गए. एंड व्हेन ही स्पोक दे लिस्टन इंटेंटली. और जब उन्होंने उनके फादर ने बोलना स्टार्ट किया तब दोनों चुपचाप उनके फादर की बात सुन रहे थे. ही सेड, बिफोर यू मूव द स्टोन आवर लाइफ वॉज स्मूथ. वॉट डिड हिज फादर टोल्ड दैट आपने जब ये स्टोन को मूव किया उससे पहले हमारी लाइफ कैसी थी? स्मूथ थी. आई यूज टू ओपन द माउथ ऑफ द केव, टेक ओनली एज मैनी एनिमल्स वेर नीडेड एंड देन शट इट केयरफुली. क्या बोले उनके फादर ने कि पहले हमारी लाइफ स्मूथ थी. क्यों स्मूथ थी? बिकॉज उनको जब जितने एनिमल्स की उनको ज़रूरत थी उतने ही वो निकालते एंड ही विल केयरफुली क्लोज द माउथ ऑफ द केव. ओके. नाउ द एनिमल्स हैव लेफ्ट द केव. देयर वाज नो एनिमल इन द केव. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? दैट वी कैन नो लॉन्गर फाइंड फूड ईजीली. इसका मतलब ये हुआ कि उनको भी फूड ईजीली नहीं मिलेगा. हियर आफ्टर वी विल have to work hard with our spears, tomahawks and bows to fetch the food. Okay? क्या बोला उनके फादर ने? अभी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. टॉमहॉक्स, ओके, वो सब लेके, बोस लेके हमें जंगल में डेली जाना पड़ेगा और फूड ढूंढना पड़ेगा. and then we will have our food. And it might also happen that some days we may get food to eat, but some days we may have to go to bed hungry. क्या बोला उनके फादर ने
कि कुछ दिन हमें फूड मिलेगा एंड कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब हमें भूखे पेटी सोना पड़ेगा. ओके, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर थॉटलेस एक्शन. क्या बोला उनके फादर ने कि आपने बिना कुछ सोचे समझे वो जो आपने एक्शन परफॉर्म किए, इट इज बिकॉज ऑफ योर एक्शन ओनली, बट वी विल एंड्योर. क्या बोला, जो आपने एक्शन परफॉर्म की है बिना सोचे समझे उसका ही ये रीज़न है. एंड सेकेंडली उनके पापा ने ये भी इंश्योर किया, एंड्योर मीन्स सस्टेन, सर्वाइव. एंड्योर मीन्स सर्वाइव, कि इससे हमारी लाइफ एंड नहीं होगी. वी विल डू मच हार्ड वर्क टू गेट फूड एंड वी विल सर्वाइव. ओके स्टूडेंट्स, चलो लेट्स सी further. Now that's why hunting has been hard work and a labor of great skill for people ever since. एक यही रीज़न है कि हंटिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द एनिमल फॉर फूड. So it is not a easy job to find a animal and hunt them. Okay? It's need a hard work, a labor of great skill. If you have skill, you can catch the animal and you can hunt. If you don't have, then you have to go to the bed hungry. Okay. The huntsman taught his people to hunt. What did this huntsman taught his people? How to hunt, how to sustain and how to conserve. Sustain means allow something to continue for a period. स्टोर करना. Sustain means थोड़ी देर के लिए कैसे उसको रख सकते हैं, for a period of time. Conserve means store, to preserve. He was a great teacher क्योंकि उसने hunting सिखाई. A warrior means a soldier who can fight to earn something. Okay. And his story became legends. And this huntsman name was Kanti. Kanti was his name. So what was the huntsman's name? Kanti. Okay students, hunting animal is no longer encouraged in any part of the world. Students, ये जो story हमने अभी सुनी huntsman की, जो animal को hunt करके अपना food बनाते थे. ओके, बट नाउ हंटिंग इज प्रोहिबिटेड. वो एनकरेज नहीं होती है नाउअडेज. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज योर स्टोरी ऑफ द हंट्समैन एंड द एनिमल्स. आई होप it is understood by you.